نہ ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا سلطان شاہ. پیر محمد کو اگر اپنے مرحوم دوست کا خیال نہ ہوتا تو اس کا بیٹا زندہ بچ کر کیسے نکلتا؟ اتنی رعایت میں نے آج تک کسی سے نہیں برتی. تمہارا دوست میرے دوست کا بیٹا ہے. پیر محمد نے دشمنی میں دوستی نبھائی. وہ مجھے مارنے آیا تھا, میں نے چھوڑ دیا اسے, چھوڑ دیا میں نے اسے. یہ گولی میں نے روشنارا کے لیے رکھی ہے. روشنارا؟ تم کون روشنارا؟ ماں ہے وہ میری. کیا دشمنی ہے تم لوگوں کو اس سے؟ سلطان شاہ کے باپ کو قتل کیا تھا اس نے فیض آباد میں. روشنارا کے بیٹے اور نواب پور کے نواسے ہو. دونے سے کام نہیں چلے گا. قتل کیا ہے قتل. اور مقصود کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پلیز آپ میرے سیدھی کرو. دل میں کچھ کالا کالا ضرور ہے سر. ہم جانتے ہیں ان جیسی عورتوں کو. تمہارا شوہر کہاں گیا تھا رات کو؟ وہ تو بھی رات کو دوست کی شادی میں گیا تھا. بول گیا تھا یا تم نے بھیجا تھا؟ نہیں یہ الزام ہے. میں آپ کو کیسے یقین دوں؟ سلطان میں بے گناہ ہوں. ان کو یقین نہیں آتا. یہ کیا لگتی ہے تمہاری بیوی ہے میری؟ تمہاری بیوی نے قتل کیا ہے. اور تم رات کو کہاں گئے تھے؟ انسپیکٹر صاحب میری بیوی بے گناہ ہے. بے گناہ؟ تمہاری بیوی نے غفور نام کے ایک شخص کو قتل کیا ہے. اس وقوع کا ایک گواہ بھی ہے اور اس کے کہنے کے مطابق تمہاری بیوی نے خود اسے بلایا تھا. انسپیکٹر صاحب میری بیوی معصوم ہے, اس پر الزام لگانے کی کوشش مت کریں. قانون کے ساتھ مذاق مت کرو سلطان. ہم نے خود اسے جائے وقوع سے گرفتار کیا ہے اور تمہاری بیوی نے اقبالی جرم بھی کر لیا ہے. یہ تو مجھے کوئی عشق مشق لگتا ہے سر. اور گھر بھی شاہپور احمد خان کا ہے. نواب صاحب وہ پولیس انسپیکٹر محمود خان آئے. بھیج دو. السلام علیکم نواب صاحب. آئیے انسپیکٹر صاحب بیٹھیے. صبح آپ پہ نظر پڑ گئی, اللہ خیر کرے. آپ پولیس والے بھی تو موت کے فرشتے کی طرح بے وقت آتے ہیں. نواب صاحب میں تو آپ کا پرانا خادم ہوں. فیض آباد کے تھانے میں خوش تو ہونا. مجھے آپ کے علاقے کی خدمت کرنے سے دلی میں مسرت محسوس ہوئی. تو ابھی انسپیکٹر صاحب کو ناشتہ کراؤ. نہیں نواب صاحب, ناشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس تو بیٹھنا بھی سعادت سے کم نہیں. تو کیسے آنا ہوا انسپیکٹر صاحب؟ نواب صاحب رات کو آپ کے پرانے گھر میں قتل ہوا. کس کا قتل ہوا؟ آپ کے نوکر سلطان شاہ کی بیوی نے رات کو اپنے بیڈ روم میں ایک شخص کو قتل کیا. FIR ابھی تک درج نہیں کر رہا. آپ کی اجازت ضرور. قتل ہونے والا شخص کون ہے؟ غفور نامی کوئی شخص ہے. معاملہ کیا ہے؟
سلطان شاہ کی بیوی سے پرانا تعلق معلوم ہوتا۔ نواب صاحب، کیا روشن آرا کی طرح یہ کیس بھی؟ جی ہاں نواب صاحب، اس وقت بھی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اب بھی تمہیں اسی طرح کرنا ہوگا۔ ایسا ہی ہو نواب صاحب، جیسے آپ کا حکم ہو۔ السلام علیکم۔ جلال صاحب میری بیٹی کو معاف کر دے۔ زبردست، بہت دیر کر دیا سامان تم نے۔ ایسی سی بھول ہو گئی ہے۔ تمہاری بیٹی نے قتل کیا ہے، قتل 302۔ اس کی مدد کرے۔ غفور میرا کیا لگتا تھا؟ وہ تو عاشی کا پرانا گاہک تھا۔ میری بیٹی کو الزام مت دے صاحب۔ زبردست، جاؤ زمان جاؤ، تمہارا داماد بہت بڑے نواب کا لاڈلا ملازم ہے۔ نواب شاپور احمد خان اس کے لیے بات کچھ کر سکتا ہے۔ سلطان شاہ، خدا خیر کرے گا، پریشان نہ ہو۔ پریشان نہ ہو؟ میری بیوی نے اپنی حفاظت کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے دیدا، لیکن جو تہمت اس پر لگی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ قانون اندھا تو نہیں؟ قانون کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونکے تو میں کہاں کہاں بکھر گیا ہوں۔ ایک طرف شاہ سوار کی زندگی بچانی ہے تو دوسری طرف میری عاشی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا دیدار، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سلطان شاہ۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا سلطان شاہ؟ میری بیٹی کو بچاؤ سلطان شاہ، میری بیٹی کو بچاؤ۔ وہ بھی گناہ ہے، اس میں شک نہ کرو سلطان شاہ۔ بابا، میں بھلا اپنی عاشی پہ کیوں شک کرنے لگا؟ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ میں قسم کاٹتا ہوں، قسم کاٹتا ہوں۔ مطلب غفورے کا غلیظ نام میری عاشی کے ساتھ کیوں مجھے محسوس کیا ہے؟ بابا، میرا یار اتنا کمزرف نہیں ہے۔ آپ بیٹھیں، بیٹھیں آپ۔ میری دنیا برباد ہو گئی، خدا جانے عاشی کا کیا ہو گیا۔ تم نواب صاحب سے خود جا کے بات کر۔ کیا کہوں نواب صاحب؟ کیسے کہوں؟ میں جا کے نواب صاحب کے سامنے خود چولی پہناؤں گا۔ ہمارے دامن پر داغ لگ چکا ہے بابا، ایسے دامن کو پھیلانا نہیں، چھپانا ہوگا۔ نواب صاحب، خوشخبری لے کر آیا ہوں، شاہ سوار روشنارا کا بیٹا نکلا۔ کیا کہہ رہے ہو تم پیر محمد؟ نواب صاحب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بتاؤ، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ کل رات سلطان شاہ حملہ کرنے آیا تھا،
فائرنگ کی تو بچ نکلا. گولی کیوں نہیں مار دی اسے؟ تم بار بار میرے دشمنوں کو بچ نکلنے کا موقع کیوں دیتے ہو پیر محمد؟ نواب شاہ احمد خان کی حویلی پر کوئی حملہ کرنے آئے اور تم اسے زندہ جانے دو؟ ایسا نہیں ہوگا نواب صاحب. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے مرحوم دوست کی محبت میں تم نے اسے جانے دیا ہو؟ نہیں نواب صاحب, نہیں, بالکل. اگر تمہارے سینے میں کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ اب نہیں ہونا چاہیے. اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پیر محمد کہ کل رات سلطان شاہ کی بیوی نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے. قتل؟ ہاں. اب ان نئے حالات میں ہمیں اور بھی کچھ سوچنا ہوگا. وہ شاہ سوار کا کیا کرے نواب صاحب؟ فی الحال اسے کہیں اور منتقل کر دو. بس سنو, شناس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. جو نواب صاحب. جاؤ. اسے کب تک مہمان رکھنا؟ جب تک نواب صاحب کہیں گے. خان بابا نے کیا کہا؟ کوئی خاص بات نہیں. اسے مارتے کیوں نہیں ہو؟ پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے یہ. نواب صاحب آئیے باہر چلے. آئیے جی. تمہارا بڑا بھائی دماغ کا بڑا تیز ہے. شناس میرا بھائی؟ میرا بڑا بھائی؟ بادشاہ جی, ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. اللہ. بادشاہ جی, یہ خانم جان کی بیٹی محراب ہے. میں آپ کے دربار میں سلام کرنے آئی تھی. سلام اس دربار میں جس کا بادشاہ بے نیاز ہے, جو مانگنے والوں کی جھولیاں بھرتا ہے. حق اللہ. حق. بادشاہ جی, محراب بیٹی کی بڑی خواہش تھی آپ سے ملنے کی. بول بیٹی, کیا خواہش ہے تمہاری؟ بس ابھی میری ماں کو معاف کر. بس ابھی میری ماں. میں تمہاری ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. حق اللہ. حق. اے خدا, تو گواہ ہے کہ میں نے خانم جان کو معاف کر دیا. اللہ. مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا. فیضو ابھی تک نہیں آیا. وہ نواب صاحب کے حکم پر سوار میں ہے. نہ فیضو آیا, نہ شاہ سوار کا پتہ چلا. میرا نواب صاحب کئی دنوں سے غائب ہے.
गुलाबजी, तुम्हें कोई आता पता? मुझे शक पड़ता है कि पुरानी हवेली में कोई गड़बड़ है। नवाब साहब ने वहां आने से मुझे रोका है। बाबा, बाबा मुझे यकीन है शाहसवार जरूर पुरानी हवेली में। बाबा मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी नवाब साहब के पास। बाबा क्या कह रही हो तुम? मैं जाके मालूम करता हूँ। बाबा, बाबा मेरा बेटा, मैं जान दे दूंगी, लेकिन अपने शाहसवार को छुड़ा के लाऊंगी। बाबा तुम पागल हो गई हो, होश में आओ। हाँ हाँ मैं पागल हूँ, मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगी। रोशनारा, तुम नहीं जाओगी। बाबा, बाबा आप शाहसवार की मौत का इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, मरने दो उसे। इससे पहले मैं नवाब साहब को रोशनारा, आखिर आप क्या चाहते हैं खान बाबा? शाहसवार कब तक? आखिर हम कब तक ये बदनुमा दाग अपने दामन पे बर्दाश्त करते रहेंगे? मेरा खून खोल उठता है उसे देखकर। तुम आइंदा वहां नहीं जाओगे। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन आप शाहसवार को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक बंदे का इंतजार है मुझे, उसे आने दो। अब ये सवाल न करना कि वो कौन है और कब आएगा। जब तक ये गलाजत खत्म ना हो मैं... आखिर आप क्या चाहते हैं खान बाबा? शाहसवार कब तक? आखिर हम कब तक ये बदनुमा दाग अपने दामन पे बर्दाश्त करते रहेंगे? मेरा खून खोल उठता है उसे देखकर। तुम आइंदा वहां नहीं जाओगे। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन आप शाहसवार को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक बंदे का इंतजार है मुझे, उसे आने दो। अब ये सवाल न करना कि वो कौन है और कब आएगा। जब तक ये गलाजत खत्म ना हो मैं... से बर्दाश्त नहीं होता खान बाबा, नहीं होता। तुम्हारे खून की गर्मी देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन कायनात ने ऐसा क्यों किया? कायनात... शनाज, तुम खुद फैजल से राब्ता करो। जाओ। अच्छा जी। सरकार, आपने याद फरमाया है। गुलाबदीन। जी सरकार। फैजाबाद से नवाब शाहपुर अहमद खान की हवेली तक एक जंगालूद जंजीर की निशानदेही हुई है। मैं समझा नहीं सरकार। एक लड़का हाथ लगा है, वो रोशनारा का बेटा निकला। रोशनारा का बेटा? आहिस्ता बोलो। उस जंजीर की एक कड़ी इस हवेली में भी है। शनास को इस बात का इल्म नहीं है। गुलाबदीन जी, मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है कि अब तुम शनास को पीर मोहम्मद के पास किसी कीमत पर भी मत जाने दो। बहुत बेहतर सरकार। तारिक रोड कराची, धूप और धुएं में घंटों की शॉपिंग।
यहाँ आराम करो, इसे अपना मेहमान खाना समझो। कैसा लगा? वाह वाह जी, वाह वाह। सुनो, ये नवाब साहब का मुजरिम है। अगर इसने भागने की कोशिश की, सुनो, तो इसे फौरन गोली मार दो। अभी नहीं, जब भागने की कोशिश करे, ठीक? हाँ। पीर मोहम्मद, इसको अच्छी तरह अपनी जबान में समझाओ, कहीं गड़बड़ न करे। फिक्र न करो, ये नवाब साहब का पुराना आदमी है, समझे? आओ, हम बाहर बैठते हैं। चाय? हाँ हाँ, जरूर पिएंगे बाहर। डरो मत, तुम अब एक आम आदमी नहीं हो। तुम सोचो कि केस की एक आम गवाह हो। गवाह का मतलब समझते हो ना? जो कुछ आपने बताया वही अदालत में भी कहूंगा। जबरदस्त, जरा एहतियात करनी होगी। जनाब साहब, क्यों खैरियत? आशी पुलिस के हाथों से भाग गई है। ये कैसे हुआ? वुमेन पुलिस स्टेशन में एंट्री के दौरान सुल्तान शाह ने हमला कर दिया और आशी को भगा कर ले गए। 2 कांस्टेबल भी जख्मी हो गई हैं। मुझे सुल्तान शाह से खौफ आता है जलाल साहब। खौफ नहीं, एहतियात की जरूरत है। तुम ऐसा करो, अभी इसी वक्त फौरन मेरे बंगले में पहुंच जाओ। जी जलाल साहब, मामला बहुत बिगड़ चुका है। सुल्तान शाह किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। सिकंदर, तुम क्यों डरते हो? तुमने तो बड़े बड़े सियासतदानों से टक्कर ली है। सियासतदान ब्लैकमेल हो सकते हैं जलाल साहब, मुजरिम नहीं। जबरदस्त, तूने गलत अंदाजा लगाया सिकंदर। अगर सियासतदान ब्लैकमेल हो सकते हैं तो सुल्तान शाह जैसे मुजरिम दिखते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, फर्क सिर्फ तरीक़ेकार में है। और एहतसाब के मीजान में दोनों एक ही तरफ तोले जाते हैं। हिम्मत करो हाशी, नहीं, हौसला मत हारो। बस मैं थक गई हूँ सुल्तान। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो। बैठ जाओ, यहाँ बैठो। सुल्तान शाह की बीवी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए आशी। हाँ, सुल्तान मेरे दिल में एक खलश बाकी है। कहीं तुम्हें मुझ पे कोई शक? मेरी बीवी इतनी बेवफा नहीं हो सकती आशी। मुझे तुम पे फख्र भी है और एतमाद भी। यहाँ से चल मिल के फासले पर दीदार का गांव है। शाहसवार की माँ और नाना पहुंच चुके होंगे। सुल्तान, शाहसवार भाई का क्या होगा? उसको भी ले आऊंगा।
मामा मेरा तुमने बहुत देर कर दी। तुम खामोश क्यों? आदाब। मामा ये शहनाज जीते रहो। बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। नवाबजादों की ख्वाहिशात जल्द पूरी हो जाती है और जल्द खत्म भी। आप बैठे प्लीज। नवाब साहब आप हमें बेटा भी कह सकती। तुम्हें देखकर नवाब शाहपुर अहमद खान साहब की याद आ गई। आप जानती हैं उन्हें? सब छोटे लोग बड़े लोगों को जानते हैं। हम छोटे से ही, लेकिन वास्ता हमेशा बड़े लोगों से रहा है। मामा नहीं मेरा, शहनाज को सब कुछ बताना होगा। शहनाज मैं तवाइफ हूँ। लेकिन मैं तो पूरी बात सुनो। बाबा, माँ जी, सुल्तान शाह और आशी आ रहे हैं। आगे वो जल्दी है, जल्दी है। हाँ बेटा, वो देखो किधर है? वो देखो, वो देखो, वो देखो। आशी मत रुक। जिस घर में तूने सुल्तान शाह की लाज रखी है वहाँ रोशन आ रहा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ठीक है बेटा, आ जाओ। आओ बेटा, आओ। हैरान हूं कि अपना तारुफ किस हवाले से कहूं। यानी तुम्हारे बहुत से हवाले हैं। चलो एक ऐसे हवाले से अपना तारुफ कराता हूं। महराब जो इस इदारे के साथ मुंसलिक रही है। जबरदस्त। हाँ, मैं महराब का होने वाला मंगेतर हूं। नवाब शाहपुर अहमद खान का पोता। जबरदस्त। इस हवाले से जैन स्टूडियो नहीं। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें महराब का माजी पसंद नहीं है। महराब के माजी से नहीं, उसके ब्लैकमेलर कॉलीग से नफरत है। वैसे भी बड़े खानदानों में इस किस्म से आगे कुछ भी मत कहना। मैं तुम्हारे यहां आने का मतलब नहीं समझा। जलाल साहब, आइंदा इस बात का ख्याल रहे कि अब महराब का नाम नवाब फैमिली के साथ लिखा और पुकारा जाएगा। फैजू, तुम मेरी इजाजत के बगैर क्यों आए हो? अनबाबा, वो कायनात की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था। कायनात की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत जिस वजह से खराब है वो तुम भी जानती हो, फैजू भी और मैं भी। बाबा, मैं और सारा बेगम एक जरूरी बात करने आए हैं। सारा, बैठो ना। खान बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो हमने फैसला किया है कि शनास और कायनात का। तुम दोनों ने जो फैसला किया है उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। फैजू, तुम्हारा बेटा तुम्हारे चचा नवाब बख्तियार अहमद खान की तरह झूठे मोती की चमक से मुतासिर हो गया। और साहिरा, तुम्हारे
तुम्हारी बेटी ने हमारे मुंह पर जो कालक मली है वो तुम अच्छी तरह जानती हो। खान बाबा, मैं शनाज को मना लूंगा। भूल है तुम्हारी, न शनाज तुम्हारा है और न कायनात हमारी। तो ठीक है, फिर आप उसे जान से मार दें, मेरी तरफ से इजाजत है। एक माँ और नवाब शाहपुर अहमद खान की बेटी होने की हैसियत से मैं भी फैसला करने का हक रखती हूँ। अब तक मुझे कायनात के बारे में जो सुनना था मैंने सुन लिया, मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बाबा, इन दोस्तों को अगर इस हवेली में रहने दें तो अच्छा है। आज मुझे पहली बार अपने बुढ़ापे का एहसास हुआ है। अब इस हवेली के फैसले औरतें करेंगी। औरत जिसे हम जैसे नवाब पांव की जूती समझते हैं, जूती। और नवाब शाहपुर अहमद खान जूती को पांव में रखता है, सर में नहीं। झूठी अदा की खौल में खुद को भी कैद रखा और मुझे भी। आज हम अपने बाप से अपनी यतीम बेटी के लिए शफकत की भीख मांग रही हैं। आज मुझे यकीन हो गया कि अपने सगे बाप के अलावा ना कोई शफकत दे सकता है और ना ही मोहब्बत। तुम ठीक कहती हो कायनात, कि तुम्हें बेवा औरत का एहसास नहीं। बेवा औरत अपनी चादर में भी अपने आप को ढांप नहीं सकती। मैंने इस हवेली की चादर इसलिए ओढ़ रखी है कि मेरे बाप को कोई ताना ना दे। प्लीज अम्मी, चले वापस अपने घर चलते हैं, प्लीज। अब ये नाता तोड़ना इतना आसान नहीं। क्यों नहीं? मुझे नफरत है इस हवेली से, मैं नफरत करती हूँ उससे। बात हवेली की नहीं, वकीलों की है। हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हौसला करो, हौसला करो। मुझ में हौसला नहीं है फैजुल्ला, शायद इसलिए कि मैं एक औरत हूं और बेवा भी, और एक जवान बेटी की मां भी। आप मुझसे ज्यादा मजबूत इसलिए हैं कि आप एक मर्द हैं और 2 जवान बेटों के बाप भी। सारा बेगम, तुमने बहुत अच्छी तरह से मुझे 2 बेटों का एहसास दिलाया है, मगर तुम देखती नहीं कि मैं कितना बेबस हूं, कितना महरूम हूं मैं। अब कोई खौफ बाकी नहीं रहा। मैंने शनाज को सारी बातें बताकर तुम्हारा खौफ खत्म कर दिया है मेरा। इंसान उस वक्त डरता है जब वो दूसरों से खुद को छुपाए। मोहब्बत में दिल और दिमाग दोनों छुपाए नहीं जाते बेटा। मेरा बेटा, तुम आराम से सो जाओ, सो जाओ। कब दर्द की मौसम बदल
मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ बाबा। फैसला करने के बाद मशवरे की क्या जरूरत बाकी रह जाती है? शहनाज, तुमने तो फैसला कर लिया है ना? हाँ। मेरे कानों तक तुम्हारी ख्वाहिश की बात पहुंच चुकी है। किसने कहा आपसे? किसने और क्या कहा बाबा? बेटा शहनाज, ये बातें छुपी नहीं रहती, लेकिन मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूं कि ये लड़की है कौन? खानम जान का नाम इस हवेली के लिए जाना पहचाना है। उसकी बेटी मेहराब। शहनाज, शहनाज, पुरानी राख में चिंगारी क्यों ताजा कर रहे हो? अगर तुम्हें इस हवेली और खानजान के पुराने ताल्लुक और वास्ते के बारे में मालूम हो चुका है, तो फिर तुमने अपने इस नए ताल्लुक के बारे में भी सोचा होगा। हाँ बाबा, मैंने अपनी माँ के बारे में जो सोचा है वही सोच उस बालाखाने के बारे में भी है। शहनाज, क्या तुम्हें खानजान ने सब कुछ बता दिया है? जहां एक तवाइफ अपना तारुफ कराती है तो साथ में नवाब शापूर अहमद खान और नवाब बख्तियार अहमद खान जैसे बड़े नवाबों का जिक्र भी आता है, और रोशनारा जैसी गरीब औरत का। बेटा, ये तुमने क्या कुर्रे डाला बेटा? तुमने क्या कुर्रे डाला? अब बताओ बाबा, अब बताओ, कहां ये तमाम जिंदा लाशें? मेरी तरफ देखो बाबा, मेरी तरफ देखो। कहां है मेरी माँ? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं उससे। माँ, पिलाऊंगा तुम्हें अपनी माँ से। मैं अभी और इसी वक्त अपनी माँ से मिलना चाहता हूं बाबा। मैंने अपनी माँ की लोरी नहीं सुनी। मैं अपनी माँ से कहूंगा, माँ मुझे मेरे बचपन की लोरी सुना दो। बहुत थक गया हूं मैं, बहुत थक गया। बाबा, मुझे झूठी तसल्लियां मत दे, पहुंचाए मुझे अपनी माँ के पास, पहुंचाए बाबा। आओ बेटा, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा और सच दिखलाऊंगा। गुलाबदीन, मैं अपने बेटे शहनाज को अपनी माँ के पास ले जा रहा हूं, अभी और इसी वक्त। नहीं खान, वो लोग अब वहां नहीं हैं, कहीं और जा चुके हैं। क्या क्या गुलाबदीन, ये तुम क्या कह रहे हो? तो कहां है वो लोग? किधर गए? मैं 2 दफा गया हूं खान। उनके घर के दरवाजे को ताला लगा हुआ है। दिल उकता गया है बादशाह जी। इंसान कितना जालिम वहशी दरिंदा है। यहाँ सब अपने अपनी गरज के सौदागर है बादशाह जी। बंदे बशर, तुझे क्या हो गया है? आजमान, आज भी काबिल अपनी भाई अबील की लाश कांधे पर रखकर फिर रहा है। जंजर और जमी के इस जंग में हम कातिल भी हैं और मकतूल भी। अल्लाह! बादशाह जी, इसको किसी ने मार दिया है। आओ आओ, अमन की अलम सुधारो। देखो अब क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने
फैजाबाद के घर का एहसान वापस करने आया हूं। एक आखिरी एहसान अगर और भी कर दे तो हर बार याद रखूंगा। शाह सवार को माफ कर दे नवाब साहब, मेरे दोस्त मुझे वापस दे दे। जो कुछ तुम दोस्ती के नाम पर मांग रहे हो गलत कर रहे हो, क्योंकि जिसे तुम दोस्त कह रहे हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। दुश्मन? हाँ, शहसवार की मां रोशनारा ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया था।